Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number 8. Chapter is Chemical Effects of Electric Current, and in this chapter my topics are conductors and electrolytes क्या होते हैं, and it is sinus 8th class. Now केमिकल इफेक्ट, यहाँ पे इस टॉपिक पे जरा ध्यान दीजिए. केमिकल इफेक्ट्स, that means a chemical change take place when we are going to pass electric current into it. केमिकल इफेक्ट्स, या इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, केमिकल changes. A chemical substance which undergo any change due to the supply of electric current. By passing electric current, there is seen a change in a chemical constituent. A chemical change take place, or we can say chemical effects take place due to the passing of electric current through it. This is the topic. By passing electric current is a source of energy. What is electric current? Source of, आपने सुना होगा बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे केमिस्ट्री में है जो they first of all take the little or more energy in the form of light, in the form of electricity here, in the form of heat, in the form of in providing the mechanical energy. वो तब वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और नई चीज बनते हैं उनमें. तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी हम इनमें पास करते हैं, ड्यू टू द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देयर इज अ केमिकल चेंज, and this electric current is a source of energy which we are going to supply to bring necessary change. What change will take place here? A chemical change take place. According about this, I will go to an example here. I will mention it here, an example. You might have heard about the hydrolysis of water. Hydrolysis of वाटर आपने ये सुना होगा, 7th क्लास में है ये. हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, दैट मीन्स, या हम कहते दैट मीन्स सिंपली ब्रेकिंग डाउन ऑफ, शाबाश, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर. देयर आर द वेरियस वेज व्हिच there are various methods there is various methods through which we can cause the hydrolysis in water, that means breaking down of water. And when there is a hydrolysis by means of, here here is the hydrolysis by means of electric current, this is known as electrolysis of water. क्या कहते हैं इसको? अगर यहाँ पे यही वाटर जो है, वाटर किस स्टेट में होता है शाबाश, यू नो H2O, दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन के. इट इज अ formula of water. When there is a hydrolysis, simply it means breaking down of water molecule. When there is a hydrolysis, hydrolysis, breaking down, the splitting of this water molecule, splitting down by passing electric current, this process is known. Then आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा इसका arrangement, electrolysis of, this is known as electrolysis of water. In the electrolysis of water, there is a formation of shabash hydrogen gas, that is the H2 gas, and there is a formation of shabash oxygen gas. आपने ये पढ़ा होगा कि in the 7th class, here is the experiment that we perform. If there is a breaking down or splitting of water molecule by passing electric current, this process is known as electrolysis of water. That means here this change take place. If water molecule, what water molecule change? Water molecule change into hydrogen gas, and it changes into shabash, it changes into the oxygen gas. यहाँ इससे
एक चेंज हुआ, it is one of the chemical, याद रखिए, it is one of the chemical substance, it undergo change, it effect take place on it. What effect, what change take place in this? There is formation of hydrogen gas and oxygen gas on passing electric current. This process is known as electrolysis of water. It is the example first. According, I am understanding you the concept of the chapter chemical effect of electric current. Now if we move ahead, also if you take the salt solution, you take the salt solution. In a salt solution, you are passing the, yes, you are passing the electric current in this. When you are passing electric current in this, this salt solution, electric current passes through it. There is the formation of salt ions. That means that यहाँ पे इस पहले तो salt solution में ये atomic form में था, शाबाश, ये substance किस state में था? Atomic state में था, हाँ. Now when there is solution, there is the formation of the salt ions, salt ion state में change होता है. या अगर कभी कभार हम लेंगे ये एग्जांपल, अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं सॉलिड स्टेट में, when we are going to pass electric current through it, यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रिक करंट, we are going to pass electric current, it changes into the NaCl in the molten state, in aqueous state. Here it, before it was in the solid state. Now it changed in aqueous state, molten in form, sodium on passing the electric current. That means here the salt solution undergoes the formation of the salt ions. Here the positive ion, there is the formation of positive ions and negative ions in these salt. Then there is the formation of the sodium ion. There is formation of the negative ions. Here ions will form. It is the effect of the electric current here. First of all, ये जो salt था ये atomic state में था. जब भी हमने इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास किया तो ये किसमें, ये एक्वस स्टेट में आया. मैंने एक्वस स्टेट में ये क्या होगा, ये आयोनिक स्टेट में होगा. दैट मीन इट विल ब्रेक डाउन इनटू, दीज आर नोन एज द आयन्स, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन. Here first of all, then now we are going to start this chapter. It is about the topic, about this chapter. What do you mean by the chemical effects of electric current? यहाँ देखिए substance जो होते हैं, we can categorize substance into the two. One is the poor conductor of electricity. Some substances are poor conductors. Then some substances are, yes, some substances are good conductors of electricity. पोर कंडक्टर क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी passes through them, इनके थ्रू पास होती है, एक एंड से दूसरे एंड तक इनमें पास होती है इलेक्ट्रिक करंट. सॉरी, इसमें कहूंगा did not electricity did not pass, electricity हम कहेंगे don't pass, electricity don't pass through them. इनमें जो होते हैं गुड कंडक्टर में electricity easily passes through, easily pass through them. इनमें बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी जो होते है वो पास होती है एक एंड से लेके दूसरे एंड तक. इफ we take this conductor, it is a conductor,
it has two ends, it is end A, it is end B, electric current is passing through it. And if we take this here, the conductor, it is a poor conductor, and it is end AC, it is end D. Electric current is not passing through it. Current is denoted by small I, current is कैपिटल आई से डिनोट करते इसमें करंट बिल्कुल पास नहीं होगी इन केस ऑफ पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, इनमें पास होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने सब्सटेंस को कैटेगराइज किया है on the basis whether electricity is passing through them or not. Any substances through which electric current is passing through them are known as poor conductors. Electricity don't pass through them, known as poor conductors of electricity. Poor conductors, or those substances are called. And those substances through which electricity is not passing through them, they are known as the bad conductors of good conductors of electricity, जिनमें electricity pass होती है। यहाँ पे भी mention कर, I will going to mention here the examples. You take the example of wood, you take the example of coal, you take the example of हम solids, I talk about solid substances, I talk about here the rubber, प्लास्टिक्स, इसमें जो हम एग्जाम्पल मेंशन कर लेंगे कॉपर, एल्युमिनियम, टेक द एग्जाम्पल ऑफ टिन, यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ द आयरन, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें मिलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज द प्रॉपर दो सबस्टेंस व्हिच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम और मेड एज, उनको इस्तेमाल किया जाता है एज ए इलेक्ट्रिक वायर्स, उनमें हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाते हैं, वी मेड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ देम, दैट मीन्स हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, मतलब इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हैं हम, इलेक्ट्रिक हीटर, वेरियस एप्लायंसेस आर मेड ऑफ these substances through which electric current is passing through, they are known as the good conductors of electricity। और जिनमें electricity don't pass through them, for example, so that they are made as the insulators, therefore they are also named as insulators, and those substances which are good conductor of electricity, they are known as conductors, and those substances through which electricity is not passing, they are also named as insulators, and they work as the insulation, their work is of insulation, therefore they are we wrap electric, जो electric wires होता है, naked electric wires होते हैं, जो naked electric wires होते हैं उनको हम wrap करते हैं, we wrap them by these insulators, rubber, plastic, polythene, wood, as you have noticed, observed that cooking ware जो होते हैं उनका जो handle होते हैं, they are of wood or plastic or rubber, because these are the following material or of the bad conductor of electricity, those are the insulators, और वहां से electricity pass नहीं होती है। तो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकन होता है उसमें जो उसके हाथ में जो स्क्रू ड्राइवर होता है, उसका एक एंड में वो उस पर रैप किया होता है प्लास्टिक, रैप किया होता है रबर हैंडल उसके होता है जो उसके हाथ में होता है, दूसरा एंड उसका आयरन जैसा वो स्क्रू लिड होता है, निब होता है, उसमें नीडल होती है, उससे वो काम करता है, और जिस एंड से वो पकड़ लेता है वो एंड क्या होता है,
insulator होता है that don't conduct electricity after that end. Therefore it is about the conductors. Some solid conductors are bad conductors, some solid conductors are good conductors of electricity. अगर हम बात कर लेंगे लिक्विड सब्सटेंसेस की, लिक्विड सब्सटेंसेस की बात हम कर लेंगे, क्या इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है कि नहीं, इनमें क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं, ये आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है इस तरह का क्वेश्चन, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. वी कैन से those liquids which conduct electricity, those liquids which conduct, say liquid A conducts, if these liquids conduct electricity through them, conduct electricity through them, इनमें हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. याद रखिए इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. हाँ, लिक्विड्स भी, कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लाइक द गुड कंडक्टर्स, लाइक द कंडक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने पढ़े कोई सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास होती है वन एंड से लेके दूसरे एंड तक. और हाँ, यहाँ पे कुछ लिक्विड्स ऐसे भी है जो विच एक्ट एज सॉलिड कंडक्टर्स, जो सॉलिड कंडक्टर जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हम उन लिक्विड्स को कहते हैं दोज लिक्विड्स conduct electricity through them, they are known as electrolytes. क्या कहते हैं उनको शब्द? They are known as electrolytes. I will give an example. Now it is liquid A and liquid B. लिक्विड B जो है लिक्विड्स से B, लिक्विड्स let and don't conduct electricity through them, don't conduct electricity through them, उनको हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. आप कहोगे सर एग्जाम्पल है, हाँ मेरे पास एग्जाम्पल्स है. हम उनको कहते हैं हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. They are called the non-electrolytes. तो हम उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, नॉन. Now example, I will mention you here the example of electrolytes, जिन बिल्कुल आपने सुना जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उन लिक्विड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनमें बिल्कुल पास होती है इलेक्ट्रोलाइट्स. क्यों, क्या वजह रहती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स ब्रेक डाउन होता है इनटू आयंस. ब्रेक डाउन, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेक डाउन इनटू इनमें आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस इनमें बनते. दीज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स don't break down into ions. ये आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, यही कारण है ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्योंकि ये लिक्विड्स कन्वर्ट होते हैं आयोनिक इन स्टेट. पहले एटॉमिक स्टेट होते हैं, मॉलिक्यूलर स्टेट होते हैं, फिर ये आयोनिक स्टेट में होके इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. ये सब्सटेंसेस मॉलिक्यूलर या एटॉमिक स्टेट में होते हैं. जब भी इलेक्ट्रिसिटी इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें आयंस नहीं बनते हैं. दीज लिक्विड्स डोंट कन्वर्ट फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर स्टेट टू द आयोनिक स्टेट, hence they remains in non-electrolytes. These are liquids and they don't conduct electricity. Here example I will mention here the salt solution. बेटा नमकीन पानी, salt water, salt solution या salt water को हो.
लेमन जूस इसमें कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी। आप अनदर एसिडिक सॉल्यूशन, जो जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन बनेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन इसमें कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिक। आप कहोगे सर यकीनन तौर सी वाटर जो है, मैरीन वाटर, ओशन वाटर, उसमें भी कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, आप कहोगे सर टैप वाटर वो भी होता है, उसमें भी कुछ डिजोल्व सॉल्ट इम्प्योरिटीज होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द tap water, sea water, salt, lemon juice, acidic solution. These are the conductors of basic solution. Basic जो basic solution होते हैं, basic. These are all the liquids and they are electrolytes and they conduct electricity. तो वो liquids जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होते, दे आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज द ग्लूकोज सॉल्यूशन। बेटा आमतौर ये हमने देखा है, ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस होते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन। हाँ, starch solution because one of the same thing. Here you can say that glycerine, you call here the distilled water, purest form of water. आपको पता है distillation method से हमें पानी हासिल होता है, distilled water, glycerine, honey. These are the, what are these? These are the non-electrolytes. या आप कहोगे सर हम और भी mention कर लेंगे इसमें examples. Yes, we can mention here the vegetable oils जो भी है. These are the liquids which don't conduct electricity. अब कहोगे सर कैसे पता लगे कि कौन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट करता है, कौन लिक्विड कौन लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी पास करती है और कौन लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है. दे आर सम लिक्विड्स यू कॉल सर electrolytes, some are non-electrolytes. How we can prove? Yes, we can prove it by, we have the testers. We can make the three types of testers, testing devices through which we can prove that which liquid can conduct electricity, which liquid don't conduct electricity. हम यहाँ पे एक सर्किट बनाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट. जिस इलेक्ट्रिक सर्किट से हम एक एक करके लिक्विड को टेस्ट कर सकते हैं कि कौन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है और कौन लिक्विड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. क्या जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयोनिक स्टेट में होता है. याद रखिए, जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयोनिक स्टेट में होते हैं क्योंकि उनमें आयोन्स बनते हैं ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट. और जो लिक्विड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो या तो एटॉमिक स्टेट में होता है या मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है या कंपाउंड स्टेट में. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सर्किट बनाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ हम डिजाइन कर लेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट. इस इलेक्ट्रिक सर्किट वी मेक ऑफ थ्री टाइप्स जो विच इज कॉल्ड एज टेस्टर, जो टेस्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाएगी. टेस्टिंग पर्पस के लिए किस पे हमें ये टेस्टिंग कराना है कि जो लिक्विड्स है ये इलेक्ट्रोलाइट्स है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये पता लगाना है हमें. नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये पता लगाने के लिए हमें कुछ टेस्टर डिजाइन करना है. वो टेस्टर क्या होता है? वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है. हाँ, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं दे ऑल्सो पास थ्रू देम इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव वीक इलेक्ट्रिसिटी. उसके लिए हमने मतलब ऐसा एक टेस्टर भी बनाया है
जो मिनिमम से मिनिमम इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट कर सकता है इन द लिक्विड्स. वीक इलेक्ट्रिक करंट, some liquids और electrolyte they और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसमें बिल्कुल बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशंस, उनमें बिल्कुल हमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो बिल्कुल स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्विकली. कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है उनमें बिल्कुल वीक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल वीक, वो हमें पता लगाना मुश्किल होता है. उसके लिए हमने वैसा ही डिवाइस बनाया. देखो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है हमें बेटा 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए. वी नीड 2 इलेक्ट्रोड्स. वी नीड, इसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड्स. व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? दीज आर द सॉलिड, यस दीज आर सॉलिड रॉड्स. एक होता इसका, एक का नाम पड़ता है इसमें, रॉड का नाम पड़ता है कैथोड, दूसरा का नाम पड़ता है एनोड. ये जो कैथोड होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड्स होते हैं. ये मेटल रॉड्स, आप ऐसे भी कहोगे सॉलिड रॉड्स, दीज आर द मेटेलिक रॉड्स. ये मेटल से बने हुए होते हैं क्योंकि मेटल है ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटेलिक रॉड्स है. तो इनको हमें क्या करना, वी नीड 2 इलेक्ट्रोड्स. ऐसे हम रेड पेन से दिखाता हूँ. वी नीड 2 इलेक्ट्रोड्स, 1 2. एक कैथोड है, दूसरा एनोड है. व्हाट आर दीज? दीज आर द मेटेलिक रॉड्स. दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स. एंड और एक इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं एक वायर के साथ. ये इलेक्ट्रिक वायर है. यहाँ पे ये दूसरे इलेक्ट्रोड है, इसको दूसरा इलेक्ट्रिक वायर है. तो यहाँ पे हम टेस्टर फर्स्ट बनाने जा रहे हैं. टेस्टर फर्स्ट में हम यहाँ पे, आप यहाँ पे की फिट कर सकते हो. इट इज द की हियर. यू कैन से इट इज द की. इट इज द की हियर. व्हाट इज दिस? It is a key. Now it is here the open key. Yes. Now you connect this with the electric bulb. आपने यहाँ electric bulb के साथ इसको connect किया है. What is this? This is the electric. Here it is electric bulb. जरा बनाएंगे अच्छे से. It is the electric bulb here. ये इलेक्ट्रिक बल्ब है. तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रोड्स मैंने बनाए, चल यहाँ इसको क्लोज ले लेते हैं. यहाँ जो मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए यहाँ पे, वन इलेक्ट्रोड इज, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको बैटरी कनेक्शन दे देता हूँ कि आप यहाँ कनेक्ट करिए, यहाँ कनेक्ट करिए. चलो मैंने बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट किया. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. मैंने बैटरी फिक्स की इसमें. इट इज द बैटरी हियर. यू कैन से इट इज द बैटरी. बैटरी में 2 चीजें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ऐसे बनाने का भी जरूरत नहीं है. अगर ऐसे आपको मैंने यहाँ पे, तो इसको यहाँ थोड़ा फॉर्म में ले लेते हैं. It is positive, it is negative, it is positive. It is negative terminal of the battery, it is positive terminal of the. पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा लाइन से हम मुझे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी शेयर रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा है. नाउ इट इज this tester. First, what are this? I am going to describe this. These are the 2 electrodes. These are 2 electrodes. One is their negative, जो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम कैथोड कहते हैं, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड कहा जाता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से
कनेक्ट होता है. What is this? Now this is the this electrode is the anode. This is another, it is positive charge. Anode, ये एनोड है, कैथोड है. एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है, और जो कैथोड ये दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसको कहा जाता है कैथोड, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है थ्रू द बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब. व्हाट इज दिस? दिस इज द शाबाश, दिस इज द इलेक्ट्रिक शाबाश बल्ब. अभी ये कनेक्टेड नहीं, जब हम यहाँ पे की कनेक्ट कर लेंगे तभी तो सर्किट जो था क्लोज्ड होगा, और इन इलेक्ट्रोड्स को हमें इमर्स करना है लिक्विड में, जिसको हमें टेस्ट करना है. व्हाट इज दिस? व्हाट आर दीज कॉइल शेप? दीज आर द इलेक्ट्रिक वायर्स. इलेक्ट्रिक शाबाश, इलेक्ट्रिक. ये आपके पास टेस्टर फर्स्ट है. इट इज अ टेस्टर फर्स्ट, जिनसे हम बहुत सारे लिक्विड्स को टेस्ट कर सकते हैं वेदर उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है. दीज आर द टेस्टिंग पॉइंट्स. दीज इलेक्ट्रोड्स वी डिप इनटू दैट लिक्विड, और ये दो बाकी जो ये पोर्शन होगा ये लिक्विड के बाहर होगा. यहाँ पे व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक बल्ब? ऑलवेज इट इज इंडिकेटर. इंडिकेटर. जब ये ग्लो होगी तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होगा तो ये ग्लो होगी, इट विल बी ग्लो. इट इज एन इंडिकेटर इन द सर्किट. ये टेस्टर फर्स्ट है. हम टेस्टर सेकंड की बात हम कर लेंगे. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो लिक्विड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, उसके लिए कन्वीनियंट टेस्टर है, कन्वीनियंट टेस्टर्स है. इट इज टेस्टर फर्स्ट. नाउ आई एम गोइंग टू डिजाइन द टेस्टर सेकंड. टेस्टर सेकंड में क्या कर लेंगे, इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे. टेस्टर सेकंड में हम बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक बल्ब हटा देते हैं. यहाँ हम इलेक्ट्रिक बल्ब को, पूरा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब को हटा देते हैं. हटाने के बाद आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट है. देयरफॉर वी टेक अ मैग्नेटिक कंपास. वी टेक अ मैग्नेटिक कंपास. हियर इट इज अ मैग्नेटिक. आपने देखा होगा लैब में होता है, उसमें होती है एक नीडल, उसमें नॉर्थ साउथ होता है, हाँ, मैग्नेटिक नीडल होता है. उसमें आएगी डिफ्लेक्शन, वो वाइब्रेट करना शुरू कर लेगा. ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नेटिक कंपास. नाउ यू आर टेकिंग द मैग्नेटिक कंपास. आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट है. जब भी इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होगी, आई विल रैप द वायर अक्रॉस दिस. यहाँ पे मैंने इसको अक्रॉस किया. यहाँ पे जो मैंने मैग्नेटिक बॉक्स रखा, मैग्नेटिक कंपास रखा, और इस मैग्नेटिक कंपास को मैंने रैप किया है. किसके साथ? I wrapped it by the wires. Have a number of turns on this magnetic compass box के मैंने इस पे टर्न्स बढ़ाए. तो जब भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी इस नीडल में, जब भी करंट फ्लो होती है वायर्स में, तो मैग्नेटिक नीडल में हमने इलेक्ट्रिक बल्ब को हटाया. यहाँ पे आई एम गोइंग टू डिजाइन ए टेस्टर सेकंड. टेस्टर सेकंड बनाने, मैंने टेस्टर सेकंड बनाया. यहाँ पे सेम टेस्टर सेकंड में की है. अब इलेक्ट्रिक के बदले के इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब there is the magnetic compass, and in the magnetic compass there is the needle. There is magnetic needle. आपने देखा होगा, किसी क्लास में पढ़ा होगा साइंस में. मैग्नेटिक नीडल, इफ यू शो द डिफ्लेक्शन या वाइब्रेशंस हियर एंड देयर, इट शोज द वाइब्रेशन, कुछ डिस्ट्रप्शन दिखाएगा ये नीडल उस वक्त. तो ये टेस्टर जो सेकंड है, इट रिमेन्स वेरी कन्वीनियंट टू प्रिडिक्ट, weak current, weak electric current किसमें? in an electro, शाबाश, in an what are electrolyte? These are in an electrolyte. वो electrolyte जिसमें एक वीक करंट क्या होती है, वीक करंट प्रोड्यूस होती है, वीक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है. वो इलेक्ट्रोलाइट को वो होती है, वो दैट लिक्विड इज ए इलेक्ट्रोलाइट, बट दैट जनरेट्स द वीक इलेक्ट्रिक करंट.
and that can be predicted by the tester secondary means convenient, feasible to detect it. Yes, it has two electrodes, one is the anode and another is the शाबाश cathode. ये बिल्कुल यहाँ पे ये मैंने अब डिफरेंस, इट इज अ बैटरी, anode is connected to positive terminal of the battery and cathode electrode is connected to negative terminal of the battery. This is two cell comprising battery, and here is the wire is wrapping over the magnetic locus, and this magnetic compass, you can say magnetic needle, if it shows the disruption within the locus, there that means here electric current is passing, and small electric current is also detected by the deflection of needle. इसमें क्या होगी, खलबली होगी. ये इस needle will show the vibration. When it shows the vibration, whenever we pass the electrodes in a liquid, जब भी हम इन electrodes को dip कर लेंगे उस liquid में, ये मान लीजिए मैंने कंटेनर लिया, ये कंटेनर मानने में हमारे लैब में बीकर होता है, ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन है. व्हाट इज दिस सॉल्यूशन? इट कैन बी एनी लिक्विड, अगर कोई भी लिक्विड हो सकता है. अगर ये लिक्विड क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो यहाँ पे मैं पहले की को क्या कर लूंगा शबाश बेटा, क्लोज. नाउ दिस इट इज अ क्लोज्ड की. इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स. यहाँ इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट है शाबाश, इट इज कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ दिस लिक्विड. अब मत ये सेपरेट आउट, देयर इज नॉट अ एयर गैप. नाउ दे आर फिल्ड, they are immersed in. Now these electrodes are immersed in water. These electrodes are immersed in liquid. Say liquid, immersed in liquid. I can say immersed in liquid. Then if this is a electrolyte, it is a good conductor of electricity, then here show the magnetic needle, show the deflection. Here current will flow from the positive terminal to the negative terminal of the battery. तो यहाँ पे करंट फ्लो स्टार्ट होगी, यहाँ से लेके यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. हियर इज द स्टार्टिंग ऑफ द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ensure that key is closed. It is the second type of tester which is used to detect any type of liquid, it conduct electricity or not. Now is the tester third. Now I am going to design the tester third. यहाँ पे ध्यान दीजिए, tester third में बता. Now tester third में हमें यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल जो है मैग्नेटिक कंपास को हटा देता हूँ. ये हटाया मैंने. अब हटाने के बाद you know the LED lights, ये ग्लो होती है, they glow up on little electricity, they are economical, they are used in the indicators in the bikes, scooters, vehicles, on with a little electric current पे भी ये क्या होते हैं, ग्लो होते हैं. that means on a weak electric current they start to glow. LED बल्ब होती है, इस तरह के LED बल्ब होती है. this is the LED बल्ब. इसमें एक वायर क्या होती है, लंबी, एक वायर छोटी होती है. जो लंबी वायर होती है वो पॉजिटिव होती है, जो छोटी होती है वो नेगेटिव होती है. तो देयरफॉर यहाँ पे हम यही LED बल्ब लेंगे. I will take this LED bulb. Here this is the LED bulb. वो रेड ऑरेंज कलर जिस तरह हमें ट्रैफिक लाइट्स में भी ये यूज्ड होते हैं. These हाँ आजकल तो ये हमें these are the economic. तो यहाँ पे जो इसका इस LED का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे एक एंड, और दूसरा एंड हम इस वायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे. तो हमें बिल्कुल यहाँ ये देखिए, यहाँ पे हमने एक एंड को कनेक्ट किया, मतलब यहाँ पे हमें यहाँ जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ हम LED की छोटी सी वायर क्या कर लेंगे बेटा, LED की छोटी सी वायर कनेक्ट कर, और इसकी बड़ी सी जो वायर होती है वो हम यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, इसके नेगेटिव टर्मिनल और इसकी पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ. तो यहाँ पे क्या होगा,
कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्शन हमने दिया इस वायर को यहाँ पे। बट व्हाट इज दिस? दिस इज द LED bulb. What is new in tester second? There is LED bulb, and this is a key. This is electric. What are these? These are the electric wires. शाबाश, बाकी कुछ नहीं मैंने किया. Electric wires arrangement is same, and there is the electrodes which are used as the testers. These are the point testers which are immersed in any liquid, whether it can predict, it can determine the minimum and minimum electric current. LED lights are very feasible, and this is a very convenient circuit. Tester third is very convenient. It is very convenient to determine, शाबाश, पता लगाना, to determine, क्या पता लगाना? weaker electric current. अगर इस लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है, फ्लो होती है, वो भी वीक, लीस्ट, कम, वो ये when it starts to glow, then we can say weak electric current. हमें पता चलेगा, हाँ, this liquid is a good conductor if this LED light starts to glow. When it starts to glow, on closer this key is like your switch on, switch off. ऐसे switch on कर लो, यहाँ glow होगी, electric current will flow again from the this electrode, from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. There is again flow of it. Now circuit is complete. Here is a continuity. Here is battery is fitted. It is battery. This is battery part. This is the LED light here. Then this is the wire, connecting wire. This is another connecting wire. This is another connecting wire. These are the electrodes. This is a liquid in a beaker. What is this? It is a beaker. Beaker contains the liquid. If it is an electrolyte, that means if it conducts electricity, then this LED bulb is glow on. When it glow on this, then we can say here is this is a good conductor of electricity. This liquid then is called, इस liquid को क्या कहा जाएगा? Electrolyte. Dear student, this is all about this chapter. Conductors क्या होते हैं, and what are the electrolytes. Also the liquid is conduct electrolytes. मैंने यहाँ पे 3 आपको टेस्टर्स बना के दिए जो हमें पता लगा सकते हैं. स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हम पता लगा सकते हैं, और वीकर एंड वीकर इलेक्ट्रोलाइट्स को भी पता लगा सकते हैं. व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स? दीज आर द लिक्विड्स which conduct electricity. Dear student, I hope also I told you about the non-electrolytes or liquids which don't conduct electricity through them. Those are the distilled water. Those are the, I can say, the glucose water. Other are also vegetable oil. Other also are the liquids. Kerosene, we don't conduct electricity through them, and therefore I differentiate here the electrolytes and non-electrolytes, and I designed it here important 3 testers, tester first, tester second, tester third, जिनको हम electrolytes को बिल्कुल बहुत बढ़िया अंदाज में पता लगा सकते कौन लिक्विड electrolytes है, कौन लिक्विड electrolytes नहीं. थैंक यू वेरी मच.